Lymph, tissue fluid. Lymph is a fluid connective tissue. It is colorless, translucent and alkaline in nature, present between capillaries and tissues. The fluid present in the spaces between the cells of a tissue is called tissue fluid or interstitial fluid. Assessment. Before proceeding further, let us know how much you have learned. Fill in the blanks. Circulatory pathways. There are two circulatory systems: open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system is a system in which circulating fluids is not confined in vessels. It is found in arthropods and mollusks. Whereas closed circulatory system is a system in which circulating fluid is confined in vessels. It is found in mammals. Human circulatory system. Heart is a chambered muscular organ in vertebrates that maintains the flow of blood in the entire circulatory system. Heart is enclosed in a double-walled sac called pericardium, which consists of outer fibrous and inextensible layer and an inner serous layer. In between the two layers, the space is filled with fluid called pericardial fluid, and it prevents friction between the walls of heart and the surrounding tissues. The heart of human consists of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Atria are located at the broader end, whereas ventricles are at the posterior end. The 2 atria are separated by an interarterial septum, whereas the 2 ventricles are separated by interventricular septum. The atria and ventricles are separated by atrioventricular septum. The opening between the right atrium and right ventricle guarded by tricuspid valve, whereas the opening between the left atrium and left ventricle is guarded by bicuspid or mitral valve. The pointed ends of the AV valves are attached to the ventricular wall by chordae tendineae. The 2 major arteries leaving the heart are pulmonary artery and aorta. Their openings are guarded by semilunar valves. The wall of the heart made up of cardiac muscles. A specialized tissue is distributed through the heart and is called as nodal tissue. The 2 nodes are sinoatrial node and atrioventricular node. Sinoatrial node is located in the upper wall of the right atrium. It coordinates heart contractions and it acts as the pacemaker for the heart. Atrioventricular node is placed in the right atrium near the atrioventricular septum. A bundle of nodal fibers from the atrioventricular node divides into right and left bundle. These branches then split into small fibers called Purkinje fibers in ventricles of their respective sides. These fibers with right and left bundle called bundle of HIS. On an average, heart has 72 beats per minute. Cardiac cycle. Initially, the heart is in joint diastole, that means all the 4 chambers are in a relaxed state. As the tricuspid and bicuspid valves are open,
blood flows into left and right ventricle from pulmonary veins and vena cava respectively through left and right atria. At this stage, semilunar valves are closed. Now the SAN generates an action potential which simultaneously stimulates both the atria to contract. This is called atrial systole. Due to this, the flow of blood increases into the ventricle. Now the action potential transmits through atrioventricular bundle and then through bundle of HIS into ventricular side, due to which the ventricular muscles contract and atria relax. Due to the contraction of ventricles, the ventricular pressure increases so that tricuspid and bicuspid valves get closed to prevent the backflow of blood. With further increase in pressure, the semilunar valves open, allowing the blood to flow from ventricles into blood vessels through pulmonary artery and aorta. The ventricular pressure goes down, due to which ventricles come into relaxed state, causing the semilunar valves to close and tricuspid and bicuspid valves get open, and the heart once again is in joint diastole state. The sequential events in heartbeat is called cardiac cycle. Cardiac output. The amount of blood pumped out by each ventricle in a given time is called cardiac output. Stroke volume. It is measured as amount of blood pumped out by each ventricle in each beat. Its normal value is 70 milliliter. The product of stroke volume and heart rate is called minute volume. Its normal value is 70 milliliter into 72 equals to 5 liters approximately. Heart produces two sounds during each cardiac cycle. The first one is lub, which is produced as tricuspid and bicuspid valve close, and another is dub, due to the closure of semilunar valves. Assessment. Before proceeding further, let us know how much you have learned. Drag and drop the correct option. Electrocardiograph, ECG. Electrocardiograph is an instrument used to record electrocardiogram, ECG. Electrocardiogram detects and records the electrical potential of the heart during cardiac cycle. A typical ECG consists of characteristic waves which correspond to particular events in the cardiac cycle. The P wave is caused by atrial systole. The QRS wave is caused by ventricular systole. The T wave coincides with ventricular diastole. The heart rate can be calculated from the interval between one P wave and the next. Double circulation. In double circulation, the blood flows through the heart twice. In pulmonary circulation, blood is transported between the heart and the lungs, whereas systemic circulation carries blood between the heart and all other parts of the body. Each organ has a major artery which supplies it with blood, and most have a major vein taking blood back to the heart. Two exceptions are the stomach and small intestines. The blood from these organs is carried by the hepatic portal vein to the liver, where the digested food is processed. The blood is transported back to the heart by the hepatic vein. Regulation of cardiac activity.
Intrinsically, the activities of heart are auto-regulated. A neural center in the medulla oblongata balances the cardiac activity through autonomic nervous system. The part of autonomic nervous system that is sympathetic nerves can change the cardiac functions such as increase the heartbeat, ventricular contraction, due to which cardiac output also changes. Another part of autonomic nervous system, that is, parasympathetic nerves, can change the cardiac functions such as decrease the heartbeat, contraction and relaxation, due to which cardiac output also changed. Disorders of circulatory system. High blood pressure or hypertension. Increase in the pressure of the blood that is above normal value, 120/80, called hypertension. It leads to disease of heart. Coronary artery disease or CAD. In this, the coronary arteries become narrowed, and coronary artery disease, also known as atherosclerosis. It leads to heart attack. Angina. It results in chest pain when not enough oxygen is available to the heart. When the heart does not pump blood effectively to the body, then heart failure condition arises. Assessment. Before proceeding further, let us know how much you have learned. Drag and drop the correct option. Did you know? Gut bacteria rich in antioxidant-producing microbes may reduce cardiovascular risk. In humans, each day hundreds of millions of fresh red blood cells form to replace the ones which come to the end of their life cycle. Summary. Let us summarize what we have learned. Blood consists of plasma and formed elements. The proteins in plasma are fibrinogen, globulins and albumins. Formed elements are erythrocytes, leukocytes and platelets. There are two groups of blood, ABO and RH. Coagulation of blood is the process of conversion of blood from liquid form into solid form. Two circulatory systems are open circulatory system and closed circulatory system. Heart is a four-chambered muscular organ that maintains the flow of blood in the entire circulatory system. Electrocardiogram detects and records the electrical potential of the heart during cardiac cycle. Disorders of circulatory system are hypertension, coronary artery disease, angina. हेलो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 1 में सबसे डिफिकल्ट पार्ट एक था जो RH एंटीजन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, RH एंटीजन और RH ग्रुपिंग, इसके बारे में थोड़े से मैकेनिज्म्स क्लियर नहीं, इस वजह से मैं मैकेनिज्म क्लियर करने की कोशिश एक बार फिर से आप क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये चीज होती है कि बहुत सारे जनों को अभी सही बोलो तो 12th में पूरा पोर्शन क्लियर नहीं है कि कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, किस वजह से होता है। इस वजह से पूरा डिटेल में बोलना पॉसिबल नहीं रहता। तो ये चलो ठीक है, एक तरह से मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको सिखाया था, एंटीजन ये आपने क्या रहते हैं, अपोज करने वाले सेल्स रहते हैं। एंटीजन से क्या रहते हैं, अपोज, और एंटीबॉडीज क्या रहते हैं, अपने साथ रहने वाले रहते हैं। बोले तो एंटीजन अपने लिए क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। ऐसे बोलने मुझे अपोज करना बोले तो क्या रहना, हार्मफुल रहना। सेकेंड, एंटीबॉडीज अपने लिए क्या रहते हैं, हार्मफुल नहीं रहते। एंटीबॉडीज क्या नहीं रहते अपने लिए, हार्मफुल नहीं रहते। पिछले बार मैंने दोनों की भी डेफिनेशन पिछले लेक्चर में आपको बॉडी सर्कुलेशन पार्ट 1 में दी है। तो अभी मैं आपको मेन मैकेनिज्म सिखाता हूँ RH ग्रुपिंग का।
आरएच ग्रुपिंग बोले तो क्या रहता है, वैसे दो ग्रुपिंग है अपने इसमें, एक बोले तो आरएच ग्रुपिंग और दूसरी होती है एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग क्या रहती है, एबीओ बोले तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। और आरएच ग्रुपिंग बोले तो क्या, जो आरएच पॉजिटिव रहते हैं उनकी जो ग्रुपिंग रहती है उसको क्या बोलेंगे अपन डायरेक्टली, आरएच फैक्टर या फिर रेसिस फैक्टर। जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहता है वो चीज को क्या बोलेंगे अपन डायरेक्टली, रेसिस फैक्टर बोलेंगे। एबीओ एंटीजन में अलग अलग टाइप के फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी इसमें मेन मैकेनिज्म में सिखाने वाला हूं, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या चेंजेस होते हैं और क्या नहीं होते। इस वजह से आपको ये पूरा स्क्रिप्ट में सिंपल सिंपल इसमें बोलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। इसमें एक ही चीज होती है, क्या होता है, जब आर एच ग्रुप मैच करते ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आर एच नेगेटिव पर्सन को, तो वो पर्सन भी आर एच के एंटीबॉडी शेयर करने लगता है। बोले तो क्या होता है इसमें, ये वैसे कुछ इतना बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये। इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल है और बहुत 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 सिंपल तरीके से बोलूंगा। ये जो आर एच पॉजिटिव है इनमें कौन सा एंटीजन रहता है, डी नाम का एंटीजन रहता है। कौन सा एंटीजन रहता है अपना, डी एंटीजन रहता। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता, आरबीसी पे प्रेजेंट रहता। आरबीसी बोले तो आपको पता ही है, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आरबीसी का फुल फॉर्म बोला था, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट रहता। तो जो कौन सा आरएच पॉजिटिव पर्सन है उसके इस पे अपने को क्या मिलेगा, हमेशा डी एंटीजन मिलेगा। ओके चलो ठीक है। अब जब इसके चेंजेस अपने को क्या होते हैं, चेंजेस कैसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं, जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो प्रेग्नेंट रहने के बाद दो बैरियर रहते हैं। अभी कैसे बैरियर रहते हैं, मैं इसके लिए अगली स्लाइड ले रहा हूँ, अगले स्लाइड पे आपको ठीक से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है चलो, तो मैं स्लाइड लेता हूँ 2 मिनट में और आपको सब प्रेजेंटेशन क्लियर करता हूँ। ये प्रेग्नेंट लेडी है, ये प्रेग्नेंट लेडी का मैंने ऑलरेडी आपके इसमें कौन से रेड मार्कर से करता हूँ, और ये बेबी का कौन से मार्कर से करूंगा, मैं डायरेक्टली अपने ब्लैक मार्कर से करता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला है आरबीसी की जो बेबी है, अपने बेबी में कौन से प्रेजेंट है, अपने आरबीसी प्रेजेंट है, उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले बोला डी एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो किस में रहेंगे, सिंपल सिंपल है, उसका ये आर एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये आर एच पॉजिटिव और इन दोनों के बीच में एक बैरियर रहता है। एक बैरियर, बैरियर बोले तो क्या, गेटवे या फिर गेट बोलते हैं अपन, या फिर स्किन बोलते हैं, या फिर लेयर बोलते हैं। एक लेयर रहती है, वो लेयर को अपन कौन सी लेयर बोलेंगे, सीधी सीधी सिंपल में इसको अपन कौन सी, प्लासेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लासेंटा, प्लासेंटा बैरियर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये जो इधर का जो ब्लड है, इस साइड का जो ब्लड है वो किसका है, बेबी का ब्लड है। किसका है, ये बेबी का ब्लड है। और ये किसका ब्लड है, ये मदर का ब्लड है। किसका ब्लड है, ये मदर का ब्लड है। ठीक है, ये मदर की इसमें आरबीसी प्रेजेंट है। अभी ये मदर नॉर्मल है, नॉर्मल बोल तो कौन से आरबीसी इसके इसमें, एबीओ वाले। तो इसमें डी एंटीजन क्या रहेगा, हमेशा अब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। अभी क्या होता है पता है क्या, ये दोनों चीज में डी एंटीजन अब्सेंट रहने के बाद इनमें एक चीज होती, जब प्रेगनेंसी होती है, अभी जो बैरियर क्रिएट किया है अपन ने, जो बैरियर क्रिएट किया है, तो वो क्या होता, ब्रेक हो जाता है। ये जो बैरियर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सीधा सीधा ब्रेक होने वाला है। बैरियर को अपन ब्रेक कर देते। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज करके बोलता हूँ, यहाँ पे बैरियर मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब बैरियर ब्रेक हो जाएगा तो अभी सिंपल सिंपल है, इनमें मिक्सिंग होने वाली है। किन किन की, ब्लड की मिक्सिंग होने वाली। किसकी मिक्सिंग होने वाली, ब्लड की मिक्सिंग होने वाली। तो फिर ये जो बेबी का ब्लड है, ये जो बेबी का ब्लड है वो प्रेग्नेंट लेडी में क्या होने वाला है, मिक्स होने वाला है। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड है वो किस में मिक्स होने वाला है, बेबी में मिक्स होने वाला है। तो अभी मोस्ट कॉमनली इसमें किसका ब्लड मिक्स होता है, यहाँ पे बेबी का ही ब्लड मिक्स होता है। किसके साथ, प्रेग्नेंट लेडी के साथ। तो इस वजह से वो क्या हो जाती, आर एच कॉम्पेटिबल हो जाती। क्या हो जाती, आर एच कॉम्पेटिबल। और जब वो आर एच कॉम्पेटिबल हो जाती है तो वो क्या करती है, खुद होके डी एंटीजन बोले तो रेसस फैक्टर तैयार करने लगती है। इस वजह से क्या होता है कि जब अभी इस वजह से क्या चेंजेस होते हैं ये अपन आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में मैं ठीक से बोलता हूँ। ठीक है, अगले स्लाइड में सिंपल सिंपल इसमें और सिंपल वे में। अब तक आपने प्रेग्नेंट लेडी में क्या हो गया, ब्लड मिक्स हो गया। इंटरमिंगल होना बोले तो क्या होना, मिक्स हो जाना। जब मिक्स होने वाला है तब क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडी। अभी फिर से मैंने पिछले इसमें प्रेग्नेंट लेडी किस में निकाली थी, वो रेड इसमें निकाली थी। अभी वो क्या हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी आर एच के क्या होने लगे, उसके इसमें आर एच क्या रहता,
RH एब्सेंट रहता, RH नेगेटिव थी तो अभी उसके इसमें क्या हो गया, RH क्या हो जाते, आ जाते हैं, RH पॉजिटिव बोले तो एक में के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते, क्या हो जाते, इंटरकनेक्ट हो जाते। जैसे इंटरकनेक्ट होने वाली है तो इंटरकनेक्ट होते हुए लगे तो उनमें क्या हो जाते हैं, RH के एंटीबॉडीज तैयार करना पहले इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से RH सिर्फ मिक्सिंग हो जाता और फर्स्ट बेबी को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, फर्स्ट बेबी को कुछ भी क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये हुआ पहला ये। अभी एग्जैक्टली जो उन्होंने टर्म दिए इरिथ्रोब्लास्टस फिटालिस, बोले तो क्या एग्जैक्टली ये टर्म कैसे अवेलेबल होती है, ये कभी भी फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडी में नहीं होती है, बोले तो फर्स्ट बेबी में नहीं होती, ये सेकेंड बेबी में टर्म लागू होती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल है कि जब अपना ब्लड, अभी फर्स्ट बेबी आया उसने ब्लड मिक्स करके दिया प्रेगनेंसी में, उसका काम खत्म हो गया। अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई लेडी, सेकेंड टाइम जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जो लेडी है उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, अभी RH ब्लड जो पहले फिटस ने क्या किया था, मिक्स किया था किसके साथ, वो लेडी के साथ, तो अभी वो उसके अपोजिट RH क्या तैयार करती, वो एंटीबॉडीज तैयार करने लगती, क्या तैयार करने लगती, एंटीबॉडीज तैयार करने लगती। और RH एंटीबॉडीज तैयार करने की वजह से उसके इसमें आईजीजी बोले तो क्या है, ये सिंपल सिंपल है, ये आईजीजी ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम रहता, क्या रहता है इसका नाम, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन बोले तो क्या, जैसे अपना हीमोग्लोबिन, ये जो चीज रहते जैसे इम्यूनिटी के सेल्स रहते उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलेंगे। ये मोस्टली किससे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी से मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी थोड़ी देर पहले अपन पिछले लेक्चर में सत्य था, डब्ल्यूबीसी से कौन से सेल से मिलते हैं, बी सेल से मिलते हैं। ठीक है, अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता, जब इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसी चीज है जो प्लासेंटा का क्या हो सकता, आर पार जा सकता है। वो तो प्लासेंटा, थोड़ी देर पहले प्लासेंटा भी सिखाया था हमने, प्लासेंटा का बैरियर रहता है किसमें, बेबी में और मदर में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो सेल है वो डायरेक्टली प्लासेंटा में जाएंगे, प्लासेंटा के अंदर जाके बेबी के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अभी बेबी के इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, क्या फिर RH एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, और मदर के पास क्या प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अभी एंटीबॉडी और एंटीजन एक जगह पे क्या हो रहे, आ रहे, बोले तो सिंपल सिंपल में ये दोनों क्या करने वाले, डायरेक्टली सामने सामने। RH एंटीजन किसका, ये डायरेक्टली बेबी का RH एंटीजन है। ठीक है, और प्लासेंटा से जो क्रॉस हुआ है, प्लासेंटा से क्रॉस होने के बाद जो RH क्या होने वाला है अपना, डायरेक्टली एंटीबॉडी आने वाला है। तो ये RH एंटीबॉडी, अभी ये दोनों एक में के क्या है, दुश्मन है, इस वजह से RH एंटीबॉडी क्या करती, इस पे अटैक कर देती, और अटैक करने की वजह से उसके पूरे RBC डिस्ट्रॉय करती। और समझा, RBC डिस्ट्रॉय हो रही तो उसमें RBC का क्या होने वाला है, कमतरता होने वाली। इस वजह से वो जो फीटस है उसके RBC डिस्ट्रॉय होते हैं, RBC डिस्ट्रॉय होंगे, उसकी इम्यूनिटी क्रिएट होंगी क्या, नहीं होंगी, उसकी इम्यूनिटी क्या होंगी, लो रहेंगी। और उसकी इम्यूनिटी समझा लो रही तो वो बेबी, हमेशा के लिए याद रखना, फर्स्ट बेबी सब्सिक्वेंटली ये नॉर्मल रहती है, और सेकेंड बेबी जो है वो हमेशा हमेशा सेकेंड हो या फिर थर्ड बेबी हो, ये दोनों भी बेबी क्या रहेंगी, इनकी डेथ रहेंगी। ये इस वजह से ये मैकेनिज्म फेमस है, जिसे RH फैक्टर मैकेनिज्म। चलो, तो अगला ये टॉपिक में अपन क्या क्या सीखने वाले, लिम्फ सीखने वाले। लिम्फ के बाद में अपन आगे उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे सीखने वाले, सर्कुलेटरी पाथवे के बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सीखने वाले, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद कार्डियक साइकिल सीखने वाले, कार्डियक साइकिल के बाद कार्डियक आउटपुट सीखने वाले, कार्डियक आउटपुट होने के बाद ECG विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये सीखने वाले, डबल सर्कुलेशन सीखने वाले, फिर बाद में रेगुलेशन एंड कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सब होने के बाद समरी और डू यू नो, ये होने के बाद अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। ये मेरे पार्ट 2 में इतना पार्ट सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। चलो, तो सबसे पहले मेरा जो बोला था आपको, तो लिम्फ से शुरुआत करते हैं। लिम्फ बोले तो क्या, एग्जैक्टली लिम्फ की डेफिनेशन क्या होती है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर मैकेनिज्म यहाँ पे सिखाऊंगा पीपीटी में। बाकी का पूरा रिप्रेजेंटेशन मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में आपको दिए हुआ है, इस वजह से मैं वो रिपीट करते नहीं बैठूंगा। मैं सिर्फ मेन चीज जो मैकेनिज्म है, जो नहीं समझने वाले कंसेप्ट है, वही यहाँ पे आपको राइट करके सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लिम्फ बोले तो क्या होता है, लिम्फ इज अ फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द कलरलेस
ट्रांसलूसेंट एंड अल्कलाइन इन नेचर प्रेजेंट बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू। वो एक फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, कलरलेस है, कलर नहीं है। मोस्ट कॉमन कलर उसका कौन सा होता है? व्हाइट होता है। ट्रांसलूसेंट बोले तो ट्रांसपेरेंट है, और अल्कलाइन, अल्कलाइन बोले तो बेसिक पीएच है। और कहां पे प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज में और टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू। टिश्यू को अपन ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। कैपिलरीज बोले तो क्या? ब्लड वेसल, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड और इंटेस्टाइनल फ्लूइड। जो फ्लूइड टिश्यू में प्रेजेंट रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। इस हिसाब से स्लाइड नंबर 11 में पूरा कुछ कनेक्शन दिए हुए है। लिम्फ बोले तो क्या और लिम्फ के इसमें क्या होता है? मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, लिम्फ एक कनेक्टिव फ्लूइड है जो कलरलेस है। कलरलेस, इसका मोस्ट कॉमन कलर व्हाइट है या फिर येलो कलर में भी पाया जाता है। बाद में ट्रांसलूसेंट है बोले तो ट्रांसपेरेंट है। अल्कलाइन है, अल्कलाइन बोले तो बेसिक पीएच है, और वो किस में प्रेजेंट रहता है? कैपिलरीज और टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है। फिर बाद में जो कौन सा फ्लूइड टिश्यू में प्रेजेंट रहता है उसको कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? अपन टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। अभी इसके बाद स्लाइड नंबर 12 में उन्होंने बोला था, इफ RH एंटीजन इज एब्सेंट देन दोस पर्सन आर कॉल्ड एज। उसका आंसर RH नेगेटिव है, उसका आंसर RH नेगेटिव है। सेकेंड, इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट देन दोस पर्सन आर कॉल्ड एज। जो RH एंटीजन प्रेजेंट रहती है तो वो पर्सन को क्या कहते हैं? तो उसको RH पॉजिटिव करते हैं। लिम्फ कहां पे प्रेजेंट रहेगा? लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ कौन सा टिश्यू है? अपना कनेक्टिव टिश्यू है। तीनों के भी आंसर स्लाइड नंबर 12 के भी आपको मैंने दिए हुए। अगला पार्ट सर्कुलेटरी पाथवे का है। सर्कुलेटरी पाथवे कितने पार्ट में डिवाइड होती है, उसके डायग्राम और वो सब कुछ मैंने मेरे स्लाइड रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सबसे पहले सर्कुलेटरी के इसमें दो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। एक बोले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड बोले तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के इसमें क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम इन विच सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज नॉट कन्फाइंड इन वेसल, इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलेसिस। अभी ये थोड़ी सी डेफिनेशन या फिर ओपन सर्कुलेशन सिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये ओपन सर्कुलेशन सिखाने से पहले तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए। आर्टरीज क्या करती है, फिर बाद में वेन्स बोले तो क्या, नर्व्स बोले तो क्या। जो ब्रेन से स्टिमुलेशन क्रिएट करती है, जो ब्रेन से क्या क्रिएट करती है? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मींस सेंसेशन। क्या बोलता है मैं इसको? सेंसेशन। उसे क्या बोलेंगे अपन? नर्व बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे अपन? नर्व बोलेंगे। इसको वेन को क्या बोलने का? फिर वेन को सिंपल सिंपल इसमें एक ही चीज बोलेंगे। कौन सा ये बोलेंगे अपन इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रही है उसे क्या बोलने वाले अपन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करने वाली है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे अपन आर्टरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? आर्टरी। ये जो होता है वेन जो होता है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। वेन क्या कैरी करती है? अपना डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो आर्टरी क्या कैरी करती है? आर्टरी हमेशा क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसमें क्या ज्यादा प्रेजेंट रहता है? O2 प्रेजेंट रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है? CO2 रहता है। ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन वेन में या फिर ब्लड वेसल में हो रहे, किस में हो रहे? ब्लड वेसल में। ये देखो एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल में जो कुछ सर्कुलेशन हो रहा है, ये टाइप का सर्कुलेशन अपन क्या बोलेंगे डायरेक्टली? इसको कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे? ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे। इसे कौन सा बोलेंगे? ओपन सर्कुलेशन। सॉरी इसको वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, ठीक से सुनो। जो सर्कुलेशन किस में प्रेजेंट रहता है? वेसल्स में प्रेजेंट रहता है, उसको अपन कौन सा बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेशन बोलेंगे। कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेशन। बराबर है ना? एक चीज के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो क्लोज इसमें अपन फ्लूइड पास करने की कोशिश करते हैं उस सर्कुलेशन को अपन कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेशन। फिर जो सर्कुलेशन ऑर्गन टू ऑर्गन होता है या फिर सिर्फ ऑर्गन में ही प्रेजेंट रहता है, ऑर्गन के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं, एग्जांपल बोलो, एग्जांपल में मैं हार्ट बोलता हूँ, हार्ट में कितने रहते हैं? 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं। अभी ये 4 वेंट्रिकल के बीच में जो कुछ ब्लड सर्कुलेट होने वाला है उस चीज को क्या बोलेंगे अपन? क्लोज सर्कुलेशन बोलेंगे। इस वजह से जो इसमें क्लोज, इस चीज को अपन ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे। ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं द सिस्टम इन विच सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज नॉट कन्फाइंड विथ वेसल।
बोले तो जो चीज वेसल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकती ऐसी चीज को अपन कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन। और जो इसमें अपन वेसल में क्या हो सकता है, पूरे चीज ट्रांसफर हो सकती है, वो चीज को क्या बोलने वाले अपन, सीधा सीधा क्लोज सर्कुलेशन। डायग्राम दी हुई, डायग्राम में उन्होंने दिए हुआ है पूरे इसमें डॉर्सल, डॉर्सल बोलते तो ऊपर का, हिमोसिकल दिए हुआ है, हार्ट दिए हुआ है, आर्टरी दिए हुआ है, ऑस्टियम दिए हुआ है, वॉल दिए हुए। वॉल बोले तो कुछ नहीं रहता है, जब ब्लड को स्टॉप करने की गरज रहती है तो एक वॉल टाइप जैसी कैरेक्टर रहता है जो उसको क्या करता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो सकता है। एग्जांपल में अपने यहाँ पे भी रहते हैं, देखो नल जो रहते हैं, नल को ये करने के लिए, एक वॉल टाइट करने के लिए अपन टैप यूज करते हैं, उस हिसाब से रहता है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये प्रेजेंट रहता है। ये होने के बाद अगला पार्ट उन्होंने क्या बोले हुआ है, अगला पार्ट में ये हुई मेरे स्लाइड नंबर 13। स्लाइड नंबर 14 में उन्होंने बोले हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बोले तो क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में उन्होंने पूरा डिफाइन किया है। सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में द हार्ट ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स, 2 arteria and 2 ventricles. Arteria are located at the border end, whereas ventricle are located at the posterior end. The true arteria are separated by the interarterial septum, whereas two ventricle are separated by the interventricular septum. The arteria and ventricle are separated by the आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके ठीक है, चलो ये चीज को मैं ठीक से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगले इसमें स्लाइड में, यहाँ पे मैं पहले बार स्लाइड लेता हूँ, स्लाइड लेने के बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज एग्जैक्टली है क्या और करने कैसे वाले। चलो ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन के इसमें कितने प्रेजेंट है, 4 चेंबर प्रेजेंट है। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है पर चलो ठीक है, ये 4 चेंबर प्रेजेंट है। कितने चेंबर प्रेजेंट है अपने, 4। और ठीक है, थोड़ा अच्छा निकाल लेता हूँ। ये ऐसे होते हैं 4 चेंबर। ओके, ये 4 चेंबर में सबसे पहले में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये समझा आपने। इसमें ये राइट आर्टरिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ए लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रहने वाला है, राइट वेंट्रिकल रहने वाला है। क्या रहने वाला है ये, राइट वेंट्रिकल। आर ए आर वी लिखता हूं उसको, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, एल ए। एल ए बोले तो क्या है तुम्हारा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद नीचे क्या है तुम्हारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऐसी चीज होती है, 4 चेंबर होता है, ये हार्ट का डायग्राम है ऐसी समझ लो, या फिर इसको एक इमेजिनेशन कंसेप्ट करो, ठीक है। हार्ट के डायग्राम में सीधा सीधा राइट एट्रियम, फिर बाद में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसी 4 चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आर्टरिया जो प्रेजेंट होता है, आर्टरिया किसमें प्रेजेंट होता है, एंटीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर बॉर्डर में जब प्रेजेंट रहेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर बोले तो क्या, एंटीरियर बोले तो सामने की साइड, बोले तो इन शॉर्ट में अपनी बॉडी जो प्रेजेंट है, बॉडी का जो समझा ये पार्ट है, ठीक है। ये अभी सामने का जो, इसको एंटीरियर बोलेंगे। और ये जो ब्लैक होल है जो आपको दिख रहा नहीं है, वो साइड कौन सी रहने वाली है, अपनी पोस्टीरियर साइड रहने वाली। कौन सी साइड रहने वाली है, अपनी पोस्टीरियर साइड रहने वाली, ठीक है। अभी ये एंटीरियर पोस्टीरियर होने के बाद उन्होंने एक ऐसा बोला है कि जो आर्टरी आपको लोकेशन है वो एंटीरियर साइड में थोड़ा सा ब्रॉडर है। ब्रॉडर बोले तो उसकी क्या है, लेंथ ज्यादा है। पर जैसे जैसे वेंट्रिकल के पास रहोगे तो वेंट्रिकल की इसमें पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट रहते बॉर्डर। जो 2 आर्टरी है उसको 2 सेपरेट करने वाले कौन है, इंट्राआर्टरियल सेप्टम है। पर 2 वेंट्रिकल है उसे कौन सेपरेट करने वाले हैं, सिंपल सिंपल में इंटरवेंट्रिकुलर। ओके ठीक है, अभी ये जो है मेरे यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ब्लू कलर का मार्कर ले तो ये जो 2 आर्टरियम है जिसको सेपरेट करने वाले, वो वॉल को क्या बोलते हैं, ये वॉल को सिंपल सिंपल में ए का क्या हुआ, आर्टरियल हुआ। क्या हुआ, आर्टरियल। और किस में प्रेजेंट है, इंटरनली प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोलने वाले अपन, इंटर आर्टरियल बोलने वाले। क्या बोलने वाले, इंटर आर्टरियल। अभी उस हिसाब से ये जो 2 है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक से मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज को ठीक से देख लेना, ये पर्पल कलर यूज किया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच। अभी यहाँ पे वेंट्रिकल बोले तो यहाँ पे क्या आने वाला है, वेंट्रिकुलर आने वाला है। क्या आने वाला है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर आने वाला है। तो यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर क्या बोलेंगे अपन, सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेप्टम। बोले तो थोड़े छोटे छोटे चीज में 2 आर्टरिया के बीच जो गैप या फिर जो कौन सा वॉल प्रेजेंट है उसको इंटर आर्टरिया बोलेंगे। 2 वेंट्रिकल के बीच जो कुछ प्रेजेंट है वो सेप्टम को अपन क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। Arteria and ventricle are separated by
आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अभी बाद में और एक चीज सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली, चलो ठीक है उसको भी बोल देता हूँ, दूसरी तरह से मार्कर से मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं हाईलाइट करूंगा ऑरेंज कलर के मार्कर से। ये देखो, ये दोनों के बीच जो आर्टरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने की चीज कर रहे हैं, ये वॉल को क्या बोलने वाले अपन, ये वॉल को सिंपल इसमें अपन एक ही चीज बोलने वाले, उसको क्या बोल लेंगे अपन, अभी यहाँ पे आर्टरिया भी है और वेंट्रिकल भी है, उसके वजह से नाम क्या आएगा, आर्ट्रियो, क्या बोलेंगे अपन इसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल में दो आर्टरी थे तो इंट्रा आर्ट्रियल हो गया, दो वेंट्रिकल थे तो दो इंटरवेंट्रिकल हो गया, और आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों आ गए, उस वजह से आर्ट्रियो भी हो गया और वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हो गया। इस वजह से इसमें इतना ही बोले भाई। अगली स्लाइड में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा सर्कुलेशन सिस्टम कैसे कैसे होता है और इसमें कैसे कैसे पूरे प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी द ओपनिंग बिटवीन द दो, हाँ चलो, तो फिर से एक बार मेरे को यहाँ पे एक डायग्राम निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके सिवा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा पूरा ठीक से कंसेप्ट। ठीक है, इस वजह से फिर से मेरे एक डायग्राम में क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स में मैंने क्या क्या निकाले भाई, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ आर्टिस्ट बीटिस्ट नहीं, इस वजह से पूरे ड्राइंग मेरे कच्चे पूरे। चलो ठीक है, समझने के लिए आपके लिए इतना काफी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ये आता है अपना, यहाँ पे क्या आता है, ये देखो पीछे एक बार देख लो, यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैंने, ये ठीक है, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। ये कौन सा अपना, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद ये कौन सा हुआ अपना, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट क्या होगा अपना एट्रियम, और यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा अपना वेंट्रिकल। चलो ठीक है, अभी दो चीज, ओपनिंग ऑफ वॉल, यहाँ पे हर एक जगह पे एक वॉल प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, वॉल प्रेजेंट रहता है। तो अभी जो सिंपल सिंपल है, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बोले तो ये दोनों के बीच में जब ओपनिंग होने वाले, उसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्टली कौन सी वॉल बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे अपन इसको, ट्राइकस्पिड वॉल बोलेंगे। सिंपल सिंपल, एक इसमें इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और जब दो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कौन सी वॉल ये होने वाली है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बाइकस्पिड वॉल बोलेंगे। कौन सी वॉल बोलेंगे अपन इसको, बाइकस्पिड वॉल बोलेंगे। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल को मैं दूसरा नाम एक यूज कर सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और माइट्रल वॉल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको, माइट्रल वॉल बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो मैंने कंसेप्ट अब तक तो आपको समझा है, पिछले इसमें भी समझा है। दो आर्टरी के बीच में जब एक सेप्टम प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रा आर्टरियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में दो सेप्टम प्रेजेंट रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो कुछ सेप्टम प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी जो वॉल प्रेजेंट है किसमें, राइट साइड की इसमें, राइट साइड की इसमें दो वॉल प्रेजेंट है आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइकस्पिड वॉल। फिर बाद में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, बाइकस्पिड वॉल। ये होने के बाद पॉइंटेड जो एंड से कौन से इसमें, एवी वॉल के, एवी वॉल बोल तो कौन सा, आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल के, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्डाई टेंडिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉर्डाई टेंडिनी। फिर बाद में दो मेजर आर्टरीज प्रेजेंट है हार्ट में, एक बोले तो कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा बोले तो कौन सा, आओर्टा। और पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा को एक वॉल गार्ड करता है, उसको कौन सा वॉल बोलेंगे अपन, सेमिलुनर वॉल। और इसमें पूरे इसमें मसल्स प्रेजेंट रहते, वो मसल को क्या बोलने वाले अपन, कार्डियक मसल बोलने वाले। टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, वो स्पेशल टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं। नोडल टिश्यू एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, हार्ट को एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन, ये सब चीजें उस पर डिपेंड रहती है। वो चार पार्ट में डिवाइड होने वाले, कौन से इसमें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने इसमें एकदम शॉर्ट फॉर्म्स में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स के बाद में अपन उसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अपना इसमें, एस
एन, एस एन को कौन सा बोलूंगा मैं यहाँ पे, एस एन को सिंपल सिंपल साइनो, ठीक है, ये ओ है, आर्ट्रियल नोड। दो नंबर पे कौन सा है अपना यहाँ पे, ए वी एन, विच इज कॉल्ड एज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल में उसको ऐसे नोड कहते हैं और इसको एवी नोड कहते हैं। 3 नंबर का नोड अपन क्या सीखने वाले हैं इसमें, इसमें 3 नंबर का नोड का नाम है अपने सिंपल सिंपल, इसमें उसको अपन डायरेक्टली बोलेंगे, उसको नाम है उसका परकंजी फाइबर। क्या नाम है इसका, परकंजी फाइबर, परकंजी फाइबर। और अगला है बंडल ऑफ हीप्स, बंडल ऑफ हीस नाम का साइंटिस्ट था, उसके ऊपर इसका नाम दिया हुआ है। तो ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं दूसरे इसमें लोकेशन कर देता हूँ। ऐसे नोड सिंपल सिंपल इसमें राइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट इसमें, राइट एट्रियम में अपर साइड में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, अपर साइड में। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बाद में देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लोकेशंस देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में राइट एट्रियम के लोअर साइड में कौन सा नोड प्रेजेंट है, एवी नोड प्रेजेंट है। इसके बाद में परकंजी फाइबर्स में क्या प्रेजेंट है, परकंजी फाइबर्स वेंट्रिकुलर में प्रेजेंट है या फिर वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। और फिर बाद में वो दो राइट और लेफ्ट इसमें डिवाइड होते हैं, और राइट और लेफ्ट इसमें डिवाइड होने के बाद रिस्पेक्टिवली उसको क्या बोलेंगे अपन, फाइबर्स बोलेंगे। और इसके बाद जो कौन से इसमें राइट और लेफ्ट इसके बंडल्स क्रिएशन तैयार होते हैं, उसको कुछ नहीं बोलने का, बंडल ऑफ हीस बोलने का। ये भी किस में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। किसके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है। चलो ये होने के बाद मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, बोलो तो ये स्लाइड का मेरा पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या है, सिंपल सिंपल इसमें उन्होंने एक सबसे पहले नोड बोला हुआ है। ये जो नोड है सबसे पहले कौन सा नोड है अपना, ऐसे नोड है जो किसमें प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के टॉप पे प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, राइट एट्रियम की किसमें प्रेजेंट है, अपने टॉप में प्रेजेंट है, ठीक है। राइट एट्रियम के टॉप में प्रेजेंट होने की वजह से ये अपर पार्ट में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, अपर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट में कौन सा नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे राइट एट्रियम का ये कौन सा पार्ट है अपना, लोअर पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा नोड है अपना, सिंपल सिंपल में ऐसे के बाद कौन सा नोड आता है अपना, एवी नोड। कौन सा नोड है ये अपना, एवी नोड है, ठीक है। ये एवी नोड होने के बाद आगे चल के, आगे मैं और एक दूसरा ये कलर लेता हूँ, यहाँ पे पर्पल कलर लेता हूँ, ठीक है। आगे चल के एक और कौन सा होता है अपना, सिंपल सिंपल में उसे कौन सा नोड कहेंगे अपन, कौन सा नोड कहेंगे अपन उसको, उसको अपन कहेंगे कौन सा, बंडल ऑफ हिप्स, बंडल ऑफ हिप्स बोलो या फिर परकंजी फाइबर बोलो, ठीक है। तो अभी परकंजी फाइबर बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, परकंजी फाइबर। परकंजी फाइबर्स ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें प्रेजेंट रहते हैं, वेंट्रिकल्स में। ये दो इसमें डिवाइड होते हैं, ये किस इसमें डिवाइड होते हैं, दो चीज में डिवाइड होते हैं। एक कौन सा साइड जाएगा, राइट साइड, और दूसरा कौन सा साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। इस वजह से कौन से वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। कौन से, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, ठीक है। तो अभी ये जो परकंजी फाइबर्स का यहाँ पे ग्रुप तैयार हो रहा है, इसे कौन सा बोलेंगे, डायरेक्टली बंडल ऑफ हिप्स राइट साइड की, और जो लेफ्ट साइड में बंडल तैयार होता है इन दोनों का मिलके अपन सीधा सीधा में सिंपल सिंपल में क्या बोलने वाले, इसको बंडल ऑफ हिप्स बोलने वाले। क्या बोलने वाले, बंडल ऑफ हिप्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये लोग का पूरे हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। बीट्स कितने प्रेजेंट है अपने इसमें, 72 पर मिनट प्रेजेंट है। इस हिसाब से मैंने स्लाइड नंबर 14 पूरी आपको सिखाई है। 14 नंबर स्लाइड होने के बाद आगे आपका कार्डियक साइकिल है। एग्जैक्टली कार्डियक साइकिल कैसे रहता है, कार्डियक साइकिल रिलैक्स कैसे होता है, फिर बाद में आगे मैकेनिज्म कैसे होता है, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जब अपन कार्डियक साइकिल में दो प्रेशर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोले तो इस हिसाब से सबसे पहले अपना आता है कौन सा प्रेशर, वो बोले तो डायस्टोलिक प्रेशर,
और दूसरा आता है सिस्टोलिक प्रेशर। एग्जैक्टली मैं यही सब चीजें ये पूरे स्लाइड नंबर 15 में सिखाने वाला हूँ। पूरे इसमें कार्डियक साइकिल में द हार्ट इज इन ज्वाइंट डायस्टोल, दैट मींस ऑल फोर चेंबर आर इन रिलैक्स स्टेट। जब डायस्टोलिक प्रेशर में अपन प्रेजेंट है, ठीक से सुनो, मैं ये लिख के देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म जब होगा तो आपको बोलूंगा ठीक से, या फिर शॉर्ट में आखिरी में मैकेनिज्म समझाऊंगा। पर सबसे पहले समझ लो, या फिर समझने से पहले सबसे सुनना सीखो, बाद में अपना समझना सीखोगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जब इसमें हार्ट किस में प्रेजेंट है, रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन डायरेक्टली डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। अभी ये डायस्टोलिक प्रेशर में एग्जैक्टली होता है क्या है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, blood flow into the right and left ventricle from the pulmonary vein and vena cava respectively through left and right arteria। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खोले जाते हैं तब उसमें से ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। एट दिस स्टेज सेमिलुनर वॉल्व गेट्स क्लोज। नाउ द सेम SAN बोले तो क्या, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था SAN को क्या बोलते हैं, सेमी जो अपना नोड है ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसे नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल which stimulates both the arteria to contract. This is called as the arterial systole. Due to this, flow of the blood increase in the ventricle. Now the action potential transmit through the AV bundle and then the bundle of Hebs into the ventricle side, due to which the ventricular muscle contracts and the artery relax। अभी ये सब चीजें सिंपल में आपको स्लाइड रिप्रेजेंटेशन पे भी समझाना पड़ेंगी, पर स्लाइड रिप्रेजेंटेशन होने से पहले पूरे कार्डियक साइकिल ठीक से समझ के लो, फिर बाद में स्लाइड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं तब पूरे इसमें से ब्लड फ्लो होने लगता है लेफ्ट में से राइट के तरफ, किस वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंड वेना कावा थ्रू रिस्पेक्टिवली, लेफ्ट एंड राइट आर्टरी में। फिर उस स्टेज पे सेमिलुनर वॉल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो सेमिलुनर वॉल जब क्लोज होती है वो एक्शन पोटेंशियल क्या करती है, जनरेट करने का काम करती है, और इस जनरेशन की वजह से आर्टरिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टली आर्टरियल सिस्टोल बोलेंगे। और इस समय पे फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस इनटू द वेंट्रिकल, सब ब्लड फ्लो कहाँ पे हो जाता, अपने वेंट्रिकल में आ जाता। वेंट्रिकल में आने के बाद एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट द atrioventricular bundle and then through the bundle of Hebs into the ventricular side, due to which the ventricular muscle contracts and relax। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, so the tricuspid and bicuspid wall gets closed to prevent the backflow of blood। With further increase in pressure, the semilunar walls open, allowing the blood to flow from the ventricles into the blood vessel through pulmonary artery and out। The ventricular pressure goes down due to the ventricles come into the relaxed state, causing the semilunar wall to close and tricuspid and bicuspid wall gets open and heart once again in the joint of diastole state। The sequent event in the heart is called as a cardiac cycle। सिंपल में ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये दो टर्म अपने को सबसे पहले पता होनी चाहिए, और यहाँ पे कौन से वॉल कहाँ लोकेट होते ये भी अपने को पता होने चाहिए, तभी ये चीज पता चलेगी। इस वजह से वीडियो कभी भी स्किप करके मत देखो, आखिरी तक देखो। पहले से आखिरी तक देखोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इस वजह से सबसे पहले कार्डियक साइकिल में उन्होंने क्या क्या बोले हुआ है ये सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी पार्ट मैंने आपको अभी बोले हुआ है कि राइट एट्रियम क्या प्रेजेंट है, कहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब कुछ मैंने बोले हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे क्या बोलना है, आगे क्या करना है, सिंपल इसमें आगे का एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन क्या है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या बोले हुआ है ये बोलने की सिंपल इसमें आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले डायस्टोलिक प्रेशर बोले तो क्या और सिस्टोलिक प्रेशर बोले तो क्या, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। डायस्टोलिक प्रेशर ये हमेशा लो रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, और सिस्टोलिक ये हमेशा हाई रहता है। इतना ही याद रखो क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें ये करना नहीं है। ठीक है, अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल हमेशा, अभी मैंने पिछले इसमें ऐसी कहीं से तो भी एक डायग्राम निकाली थी, यहाँ पे ऐसी एक पार्ट है,
ठीक है। जब अपन ये लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट में क्या निकाला था अपन ने, ट्राइकस्पिड निकाला था, इसको ट्राई लिखेंगे अपन। और यहाँ पे अभी ये राइट है तो चलो ठीक है लिख लेते हैं। राइट कौन सा है अपना, ये एट्रियम। राइट कौन सा है ये, वेंट्रिकल। लेफ्ट कौन सा है ये, एट्रियम। लेफ्ट कौन सा है ये, वेंट्रिकल। लेफ्ट में कौन सी रहती है अपनी, बाइकस्पिड वॉल रहती है, ठीक है। अभी जब एक आधे इसमें क्या होने वाला है, सिंपल सिंपल में दोनों ट्राइकस्पिड वॉल बोले तो ये ट्राइकस्पिड, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो किस में आने वाला है, वेंट्रिकल में आने वाला है, ठीक है। और ये बाइकस्पिड भी रिलैक्स होने वाली है, तभी भी क्या होने वाला है, आर्टरिया से ब्लड फ्लो कहाँ पे होने वाला है, वेंट्रिकल में आने वाला है। अभी ये जो आर्टरी से ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में आता है तो कौन लाता है, ये कौन सी, इसमें कौन सी वेन लाने वाली है, पल्मोनरी वेन लाने वाली, और साथ में कौन सा वॉल, पल्मोनरी वेन, और किसमें क्या, वेना कावा में आने वाली, ठीक है। तो अभी ये स्टेज पे जब आर्टरी और वेंट्रिकल में ये रहता है तब क्या क्लोज रहने वाला है, यहाँ पे मैकेनिज्म नंबर 1 में सेमिलुनर वॉल क्लोज रहने वाला है। कौन सा वॉल क्लोज रहने वाला है अपना, सेमिलुनर वॉल क्लोज रहने वाला है। सेमिलुनर वॉल क्लोज होने के बाद आगे क्या होता फिर, जब सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाता है, जब सेमिलुनर वॉल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तब सिंपल सिंपल में वो क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को मैं एपी लिखता हूं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद वो क्या करने वाला है, प्रेशर लाने वाला है। किस पर प्रेशर लाने वाला है, दोनों आर्टरिया पे। किस पे लाने वाला है, आर्टरिया पे प्रेशर लाने वाला है। आर्टरिया पे प्रेशर लाने के बाद वो आर्टरी को क्या करेगा, सिंपल सिंपल में एक्शन पोटेंशियल साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया टू कॉन्ट्रैक्ट, और आर्टरिया पे प्रेशर लाने की वजह से ये सब चीज को अपन कौन सा सिस्टोल बोलेंगे, आर्टरियल सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये सब चीज को आर्टरियल सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। अब ये आर्टरियल सिस्टोल होने के बाद तो द फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस। अभी सीधा सीधा है, राइट एट्रियम में से सब ब्लड, अभी यहाँ पे प्रेशर होने के बाद राइट एट्रियम में से सब ब्लड किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद एक्शन पोटेंशियल फिर से जनरेट करना पड़ेगा, किसमें, अपने वेंट्रिकुलर साइड में। अभी यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो कौन जनरेट कर रहा है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था वो कौन सा नोड जनरेट कर रहा था, एवी नोड कर रहा था। कौन सा नोड कर रहा था, एवी नोड कर रहा था, ठीक है। ये सिर्फ हो गया किसका, अपना आर्ट्रियल से लेके तो वेंट्रिकल तक। अभी अगले स्लाइड में अपन सीखेंगे वेंट्रिकल से लेके तो आगे आर्टरी तक क्या होता है। अभी सब फीलिंग हो गई है, फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ आपको सिंपल सिंपल में रहने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम है अपनी, ठीक है। ये अपना कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब तक आपने क्या सीखा कि पूरा ब्लड किस में आ गया, यहाँ पे यहां से लेके तो इधर ट्रांसफर हो रहा है। बोलते तो सबसे ज्यादा ब्लड किस में प्रेजेंट है, अभी वेंट्रिकुलर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी वेंट्रिकुलर इफेक्ट क्या करते हैं, तो वेंट्रिकुलर, ये स्लाइड में अपन ये सीखने वाले वेंट्रिकल एग्जैक्टली क्या करता है, या फिर वेंट्रिकल आगे चल के क्या करने वाला है। वेंट्रिकल सीधा सीधा प्रेशर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होने वाला है वो कौन सी वॉल करने वाला है, सिंपल सिंपल में एक ही वॉल करता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है तो कौन सी वॉल करने वाला है, एवी नोड करने वाला है। कौन सा नोड करने वाला है, अपना एवी नोड करने वाला है, ठीक है। ये एवी नोड वाला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता, वो जनरेट होने के बाद आगे क्या होता, आगे क्या चेंजेस होने वाले, वो आगे के चेंजेस में उन्होंने बोले हुआ है कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो बंडल ऑफ हीप्स और वेंट्रिकुलर साइड के वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आर्टरी को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। क्योंकि आर्टरी और इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर आ रहा है। ब्लड प्रेशर आने के बाद सिंपल सिंपल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होने वाला है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद वो किस पे इफेक्ट करने वाले, आगे चल के बंडल ऑफ हिप्स पे रिपोर्ट करने वाले। किसमें, बंडल ऑफ हिप्स, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ठीक है। बंडल ऑफ हिप्स पे इफेक्ट करेंगे, और बंडल ऑफ हिप्स क्या करेंगे, आगे चल के एक ही इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। वेंट्रिकुलर मसल को क्या करने की कोशिश करेगा, सिंपल सिंपल में रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। अभी ये होगा आधा ही मैकेनिज्म होगा। जब अपने इसमें अपन ने आर्टरिया में क्या देखा था, आर्टरिया में अपन ने एक चीज देखी थी, आर्टरिया से अपन क्या कर रहे, ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकुलर में आते, ठीक है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर पुट कर रहे हैं। जब मैं आर्टरिया से लेके वेंट्रिकुलर में प्रेशर पुट कर रहा हूं तो सेमिलुनर वॉल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
क्लोज होने के बाद वो एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद ये प्रेशर किस में आएगा, आर्टरी में होगा और आर्टरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। बोले तो आर्टरी में क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है ब्लड का। अभी आर्टरी में प्रेशर आ रहा है तो सिंपल सिंपल में वेंट्रिकल क्या होते चले, फील होते चलेंगे। वेंट्रिकल जब फील होते चलेंगे तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, कौन से नोड पे जाएंगे, एवी नोड पे जाएंगे। एवी नोड को बोलेंगे कि बंडल ऑफ हिप्स को बोलो कि वेंट्रिकुलर मसल को रिलैक्स करने लगा है, और वो जब रिलैक्स होंगे तब आर्टरी क्या हो जाएगा, अपना रिलैक्स हो जाएगा। अभी ये आर्टरी रिलैक्स होने के बाद भी पूरी कार्डियक साइकिल हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसके बाद भी आगे के स्टेप्स है, आगे के स्टेप्स में ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, अभी वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, सिंपल सिंपल पे कि अभी जब आर्टरी, जब दो सामने ऊपर वाले दो, अपन मैं अगले स्लाइड में रिप्रेजेंट करता हूं ये सब चीजें ठीक से एक बार फिर से। अभी ये चार प्रेजेंट है, ठीक है। ये दो रिलैक्स हो चुके हैं, बोलते ये कौन सा है, अपने राइट एट्रियम है, और ये कौन सा अपना लेफ्ट एट्रियम है। ये रिलैक्स होने के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर किस में आया है, ये इसमें क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। मैंने ऊपर एरो किया है, उसका मीनिंग इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी ज्यादा देर लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर ज्यादा होगा तो अपने हार्ट को क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से जब ड्यू टू द contraction of ventricle the ventricular pressure increases so that tricuspid valve and bicuspid valve get close to prevent the backflow of blood। बोले तो जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किसमें प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, ये वेंट्रिकुलर साइड में। जब प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब कौन से वॉल्व क्लोज होने वाले, दो वॉल्व क्लोज होने वाले। इसको एक बोलेंगे ट्राई और दूसरे को क्या बोलूंगा मैं, बाइकस्पिड। दोनों भी वॉल्व क्या हो जाते, क्लोज हो जाते। क्लोज क्यों होते, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए या फिर आगे पास होना चाहिए। बोलते यहाँ से आगे पास जाएगा, वो अपने आगे सर्कुलेशन में है, वो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इस वजह से इनको क्या कर देते हैं, वॉल क्लोज कर देते हैं दोनों साइड के, ठीक है। जब इंक्रीज होता है, विथ फर्दर इंक्रीज इन द प्रेशर द सेमिलुनर वॉल्स ओपन अलोइंग द ब्लड to flow from the ventricles into the blood vessel through the pulmonary artery and aorta। बोले तो इसके बाद ये जब प्रेशर क्रिएट होने के बाद, ये क्लोज होने के बाद, अभी किस में ब्लड प्रेजेंट है, अपने वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। वो फिर से एक बार सेमिलुनर वॉल को क्या कर देते, क्या करने को लगाते, डायरेक्टली सेमिलुनर वॉल को ओपन करने को बोलते। क्या होता, सेमिलुनर वॉल ओपन होने के बाद सिंपल सिंपल में क्या होने वाला है, एक ही चीज होने वाली, आगे फ्लो होगा किसका ब्लड, तुम्हारा आर्ट्रियल में, आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर में और पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में अपना ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से द वेंट्रिकुलर प्रेशर गोज डाउन ड्यू टू विच वेंट्रिकल्स came into the relaxed state causing the semilunar wall to close and tricuspid and bicuspid wall to get open and heart once again join the diastole stage। जब ये आउटा में ब्लड रिलीज होता है तो उस वजह से आउटा में जब ब्लड रिलीज होने वाला है तो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है अपना वो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल सिंपल में वेंट्रिकुलर क्या होने वाले, रिलैक्स होने वाले। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होने वाले तो वो क्या करने वाले, फिर से सेमिलुनर वॉल को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे और ट्राइकुस्पिड वॉल और बाइकुस्पिड वॉल को ओपन करेंगे। तो जब वो ओपन होने वाले तो फिर से क्या होने वाला है, सिंपल सिंपल इसमें हार्ट को डायस्टोलिक स्टेज में आना पड़ेगा और ये सीक्वेंशियल इवेंट प्रेजेंट रहता है, इस वजह से ये चीज को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये हो गया लेंदी प्रोसेस। अभी सिंपल सिंपल में समझना होगा तो सिंपल इसमें ये देखो, ये अपना राइट एट्रियम है और अपना क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। अभी सबसे ज्यादा ब्लड किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। बोले तो ब्लड इंक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, अपना ब्लड इंक्रीज हो रहा। तो तब अपन क्या करने वाले, कौन से दो वाले, अपने ट्राई और बाय, ये दोनों भी क्या करते हैं, सिंपली ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद किस में ब्लड डालते हैं, अपने वेंट्रिकल्स में डालने का काम करते हैं। वेंट्रिकल्स में डालते समय जब ये प्रोसेस हो रही है तब इनमें कौन सा पोटेंशियल रहता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। कौन सा पोटेंशियल होता है, अपना एक्शन पोटेंशियल होता है। वो एक्शन पोटेंशियल किससे कॉज कर रहे हैं अपन,
सिंपल सिंपल इसमें वो जो एक्शन पोटेंशियल है तुम्हारे इसमें कौन सा नोड कॉज कर रहा है, एवी नोड कॉज कर रहा है। कौन सा नोड कॉज कर रहा है, एवी नोड कॉज कर रहा है, ठीक है। एवी नोड एक्शन पोटेंशियल कॉज करेगा और एक्शन पोटेंशियल होने के बाद वो आगे क्या करेगा, सिंपल सिंपल इसमें वो आर्टरियल सिस्टोल बनेगा। क्या बनेगा, आर्टरियल सिस्टोल बनेगा। बोले तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, किसका, ब्लड फ्लो का, ठीक है। अभी ये ब्लड फ्लो का इंक्रीज होने के बाद अभी ये ज्यादा देर रहेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से वेंट्रिकल क्या करते हैं उस समय पे, वेंट्रिकल खुद को डायरेक्टली एक सिंपल सिंपल स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं। वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल उस समय पे जिसमें एक्शन पोटेंशियल राइट एट्रियम में बढ़ रहा है उस समय पे वेंट्रिकल क्या करेगा, सीधे सीधे बंडल ऑफ फिब्स या फिर डायरेक्टली आगे जाके मसल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मसल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोले तो क्या, मसल और इसको रिलैक्स करने को बोलेगा, किसको, अपने पूरे इसके वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ाएगा खुद होके और आर्टरिया और अपने पूरे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को रिलैक्स करने को बोलेगा। अभी जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों भी रिलैक्स हो जाएंगे तो उस समय पे वेंट्रिकल पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रेशर इंक्रीज होने के बाद उस समय पे वो क्या कर देते, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम वॉल क्लोज कर देते। कौन से वॉल क्लोज कर देते, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। क्यों, तो ब्लड फ्लो पीछे नहीं होना चाहिए इस वजह से। अभी वेंट्रिकुलर पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेंट्रिकुलर पे जिस समय पे प्रेशर इंक्रीज होता है उस समय पे वो एक ही काम करता, क्या करता, सिंपल सिंपल में अपना रिलैक्सेशन स्टेज लाने के लिए सेमिलुनर वॉल को क्या करना पड़ता, उसको क्लोज करना पड़ता। जब वो सेमिलुनर वॉल को क्लोज करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे, फिर से एक बार ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और वेंट्रिकुलर पे जब प्रेशर आता है तो वो खुद होके उसका पूरा ब्लड किस में पास करता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी में या फिर आर्टरी में पास होता है। परंतु वेंट्रिकुलर के इसमें प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये किस में जाने वाला है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद आगे किस में जाएगा, आयोर्टा में। और वो एक चेंज लाएगा, वो चेंज कौन से लाएगा, सेमिलुनर वॉल को क्लोज करेगा। सेमिलुनर वॉल जैसे क्लोज हो जाएंगी तो क्या रिलैक्स होने वाले अपने, डायरेक्टली ओपन कौन से होने वाले, सिंपल सिंपल में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल फिर से क्या होंगे, ओपन होंगे। जैसे वो ओपन होंगे तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इस वजह से ये सीक्वेंशियल इवेंट को अपन कुछ नहीं कहते, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये सीक्वेंशियल इवेंट को क्या कहते हैं अपन, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये इसमें मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझाने की कोशिश की है, ठीक से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो इवेंट्स कौन से भी इसमें समझ में नहीं आएंगे। ये होने के बाद अगला पार्ट है मेरा पूरे इसमें कार्डियक आउटपुट का। एग्जैक्टली कार्डियक आउटपुट बोले तो क्या है, और कार्डियक आउटपुट के इसमें क्या चीज है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल इन अ गिवन टाइम। अभी एक वेंट्रिकल जब वेंट्रिकल के प्रेशर के बाद इंक्रीज होने के बाद जो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर पंप करने की कोशिश करता है उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट नॉर्मली ईच वेंट्रिकल ईच बीट में कितना रहता है, 70 ml रहता है। तो उस वजह से उसके इसमें जो कौन सा स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट रेट में प्रेजेंट रहता है उसको मिनट वॉल्यूम बोलेंगे। उस वजह से नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल जो वॉल्यूम है जो अपने 72 बीट्स पर मिनट इंटू 70 ml करेंगे तो कुछ तो भी 5 लीटर के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आना ही चाहिए। इस वजह से कार्डियक आउटपुट अपना एक मिनट में अपन कितने करते हैं, 72 बिट्स लेते हैं। 72 बिट्स में अपन कितना लीटर ब्लड प्यूरिफाई बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, 5 लीटर फेंकने की कोशिश करते हैं। हार्ट प्रोड्यूस 2 साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है कार्डियक साइकिल में। पहला साउंड होता है तुम्हारा जिसको बोलते हैं कि अपन ल, विच प्रोड्यूस बाय द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के क्लोज में, और दूसरा होता है डब जो जिसमें का क्लोजर में होता है सेमिलुनर वॉल के। इस वजह से 2 साउंड फेमस है। सबसे पहले आपने इसमें लब होने के बाद 2 वॉल क्लोज हो जाते, कौन से हो जाते, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और जब डब होता है तब एक वॉल क्लोज होता है जिसको क्या कहेंगे अपन, सेमिलुनर वॉल कहेंगे। असेसमेंट और आंसर है, असेसमेंट और आंसर में अलग अलग इसमें आपके इसमें बोले हुआ इन लोगों ने कि क्या क्या आंसर है, ठीक है। तो चलो ठीक है, पहले इसमें अपने इसमें उन्होंने क्या बोले, फर्स्ट डैश इज द सिस्टम इन विच सर्कुलेटरी फ्लूइड इज कन्फर्म्ड, ठीक है। ये होता पहला क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या है, उसका आंसर सिंपल सिंपल इसमें जब अपने इसमें कौन सी सिस्टम में, डैश इज द सिस्टम विच सर्कुलेटिंग फ्लूइड
इज कन्फर्म्ड इन द वेसल। वेसल की इसमें एक ही फ्लूइड आता है, कौन सा फ्लूइड आता है अपना, वो बोले तो अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आंसर होगा उसका। क्या आंसर है उसका? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आंसर है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का देखते हैं। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन है अपना, डैश इज अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच बीट। उसका आंसर अपना सिंपल इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम है। क्या आंसर है इसका? स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। फिर बाद में 3 नंबर पे डायरेक्टली, डैश इज अ सिस्टम इन विच सर्कुलेटरी फ्लूइड इज नॉट कन्फर्म्ड इन वेसल। उसका आंसर अपना डायरेक्टली ओपन सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी मैंने समझाया था, ऑर्गन के बीच और जो वेसल के बीच रहता है उसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में मेन उन्होंने क्या क्या बोले हुए हैं, वैसे कौन से एश्योरेंस चीजें नहीं है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों किया जाता है या फिर क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की वजह से हमें हार्ट के अलग अलग डिसऑर्डर समझते हैं, एग्जांपल इस्केमिक हार्ट डिजीज, फिर बाद में उसके बाद में ट्रेकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया और हार्ट के इन्फेक्शंस, उसके बाद में आपने हार्ट अटैक्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये सब चीजें हमको ईसीजी के वजह से समझते हैं। इस वजह से ईसीजी इम्पोर्टेंट है। ईसीजी एक इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग लाता है हार्ट की, ठीक है। तो इस वजह से ईसीजी इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इट डिटेक्ट्स द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रो कार्डियक साइकिल का पोटेंशियल ये करने में काम है। इसमें 4 कैरेक्टर प्रेजेंट है, पी वेव प्रेजेंट है। कौन सी वेव प्रेजेंट है? सबसे पहले पी वेव प्रेजेंट है। फिर बाद में इसमें और एक वेव प्रेजेंट है, उसे कौन से कहेंगे? क्यू आर एस वेव प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है अपनी? क्यू आर एस प्रेजेंट है। बाद में एक प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? टी वेव बोलेंगे। और आखिरी में जो आती वो बोले तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के बाद ये इसमें ये 4 ही वेव, सॉरी ये क्यू आर एस 3 और ये मिलके 5 वेव प्रेजेंट है, ठीक है। पहले वेव में क्या होता है? पहले वेव में सिंपल इसमें ये वेव क्या करने की कोशिश करती, किसकी रीडिंग ले रही है? एक सिंपल इसमें ये एक ही रीडिंग लेती है, आर्टरियल सिस्टोल की लेती है। किसकी लेती है अपने इसमें? आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल बोले तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट राइट एट्रियम का जो कौन सा ब्लड फ्लो है उसके बारे में, ठीक है। क्यूआरएस किसका लेती है? वेंट्रिकुलर का, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में क्या लेने वाले? वो रीडिंग लेने का, ब्लड फ्लो की सब रहा। सिस्टोल बोले तो क्या? हाई ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है। फिर बाद में टी वेव क्या लेती है? डायरेक्टली सिंपल इसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेती है। क्या लेती है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेती है। और इसके हिसाब से अलग अलग टाइमिंग्स दिए हुए अपने इस पे। आर्टरियल सिस्टोल 0.0 से लेके तो 0.2 सेकंड इनका नॉर्मल टाइमिंग है। किसका? अपना टी वेव का। कितना है? 0 से लेके 0.2 सेकंड। इसके बाद में क्यू आर एस का 0.2 से लेके कितने तक है अपना? 0.4 तक प्रेजेंट है। और आखिरी में जो टी रहता है बोले तो जो कुछ है 0.4 से लेके कितने तक है अपना? सिंपल इसमें ज्यादा जाओगे तो 0.4 तक नहीं, ये 0.6 तक है, ठीक है। ये 0.6 से लेके तो कितने तक है? 0.8 तक है। बस यही चीजें अपनी ईसीजी में सिखानी थी। ईसीजी के बाद अगला पॉइंट है अपना डबल सर्कुलेशन वाला। डबल सर्कुलेशन के बाद आगे अपन सीखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये 3 ही पार्ट है। ये 3 पार्ट होने के बाद अपना टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। मुझे पता है मैं आपको ज्यादा बोर कर रहा हूँ लंबे लंबे लेसंस देके, पर ये सब चीज और मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। इस वजह से इनको अच्छी तरह से डिस्कस करने में ही फायदा है। इस वजह से इनको ठीक से डिस्कस किए गए, ठीक है। जो लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है उन्होंने प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक भी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले मैं फिर से शुरू करता हूँ डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन में क्या है? द डबल सर्कुलेशन द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ये इसमें हार्ट की इसमें से ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स एंड वेयर इज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन blood carries between the heart and all part of the body. Each organ has a major artery which supply it with the blood and most have the major vein taking blood back to the heart. Two exceptional are the stomach and small intestine. The blood from this organ is carried by the hepatic portal vein where the digestive process
is proceed the blood transmitted back to the heart by the hepatic vein. ओके चलो ठीक है। अभी ये सिंपल में सर्कुलेशन अपने इसमें दो टाइप के रहते हैं। इसके मैकेनिज्म ज्यादा कुछ डीप में जाओ मत, बहुत बड़ा हार्ट जितना बड़ा मैकेनिज्म किसका ही नहीं है, सही बोले तो हार्ट और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके मैकेनिज्म बड़े रहते हैं। चलो ठीक है, डबल सर्कुलेशन दो पार्ट में डिवाइड है। एक बोल तो पल्मोनरी, क्या बोलता मैं, एक पल्मोनरी में क्या होता है, ब्लड हार्ट से लेके किससे लेके बोलता मैं, सिंपल में ब्लड अपने इसमें हार्ट से लेके तो किस में जाता, लंग्स में जाता, किस में जाता, लंग्स में जाता। फिर बाद में लंग्स से किस में आता, हार्ट में आता, और हार्ट में आने के बाद आगे किस में सर्कुलेट हो जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता किसके थ्रू, आर्टरीज थ्रू, किसके थ्रू, आर्टरीज थ्रू। ये चीज को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर से ये जो डी ये हो गया किसका, ये पूरा प्रोसीजर है ऑक्सीडेटेड ब्लड का, जिसको O2 ब्लड बोलता मैं, ठीक है। बॉडी से फिर से एक बार सर्कुलेशन आता, मैं यहाँ पे ब्लैक से बोलता हूँ, ठीक है। बॉडी से डायरेक्टली हार्ट को जाने वाला जो सर्कुलेशन है, इसको कौन सा बोलूंगा मैं, CO2 सर्कुलेशन। CO2 सर्कुलेशन बोल तो कौन सा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाला। और वो जो कैरी करने वाले, वो कौन कैरी करने वाले, वेन्स कैरी करने वाले। एक्सेप्ट कहाँ पे, दो इसमें, एक डाइजेस्टिव इसमें कौन सी वेन है तुम्हारी, हिपेटिक वेन है। कौन सी वेन है, हिपेटिक वेन है। वो क्या सर्कुलेशन कैरी करती, वो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेती। और एक हार्ट में है, एक हार्ट में कौन सी वेन है तुम्हारी, पल्मोनरी वेन है। वो भी क्या कौन सी सर्कुलेशन लाती, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीडेटेड ब्लड लाती, लंग से किसके तरफ, अपने हार्ट की तरफ। ये दो ही एक्सेप्शनल है ये पूरे सर्कुलेशंस में जिसमें अपने को प्रॉब्लम होता है। ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत डीप में, बहुत कुछ चीजें उसके हिसाब से रहती है, पर ज्यादा कुछ डीप में घुसूंगा तो आपको इतना इस 11वीं में या 12वीं में पूरा कुछ टोटली दिए हुए नहीं, इस वजह से मैं डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक बोले तो क्या, सिस्टेमिक बोले तो क्या, द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली ये इसमें क्या होता है, सिस्टम में ये जो मेरा आखिरी का पार्ट है, बोल तो ये जो ब्लड से लेके हार्ट से लेके तो किसमें, बॉडी तक जो जा रहा है, वो सब सिस्टम को अपन कौन सा ये बोलेंगे, सिस्टेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, सिस्टेमिक बोलेंगे। बोले तो हार्ट तक ब्लड आ गया, हार्ट तक ब्लड आने के बाद सिंपल में बॉडी को गया, बॉडी से फिर से आया, ये टाइप ऑफ सर्कुलेशन किसमें प्रेजेंट है, अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होने के बाद अगला पार्ट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में उन्होंने क्या क्या बोले हुआ है, सबसे पहले बोले हुआ है रेगुलेशन करने के लिए इंट्रासिनिक द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या फिर आप खुद के मन से नहीं चला सकते, वो खुद के मन से चलता है, इस वजह से वो इंट्रासिलिक एक्टिविटीज में प्रेजेंट है। दूसरी चीज जो न्यूरल सेंटर में मिडिल ऑब्लिगेंटा प्रेजेंट रहता, वो मिडिल ऑब्लिगेंटा में उसका क्या रहता है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो प्रेजेंट रहता, ठीक है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहने के बाद वो एक पार्ट है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, इसमें जो बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, बोलते द पार्ट ऑफ एटोनॉमिक दैट इज पैरासिम्पैथेटिक कैन चेंज द heart's function such as increase of the heartbeat, ventricular contraction due to which cardiac output also changes. Another part of the autonomic nervous system that is parasympathetic change can change the cardiac function such as decrease of the heartbeat contraction in relaxation, cardiac output also changes. simple में ये regulation सब कुछ CNS के हाथ के अंदर है। CNS में sympathetic और parasympathetic pathway ये जो रहता वो इसमें पूरे इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे में प्रेजेंट रहता, इस वजह से पूरे जो कुछ हार्ट का पूरा सर्कुलेटर है वो ऑटोमेटिक है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में निकल जाते तो जब एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चल जाते हैं तब अलग अलग तरफ से कार्डियक फंक्शन होते हैं, वो इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट होता है। बोले तो सिंपल में अपने इसमें अपन बोलते देखो बीपी बढ़ गया तो वो बीपी बढ़ जाता है जब अपने एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपन कौन से सिंपैथेटिक पाथवे में होता है, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे में डिक्रीज होता है, बोलते बीपी कम हो जाते बोलते तो बीपी कम हो जाता है। इस वजह से ये पूरा रेगुलेशंस ये क्या होता है पूरा सीएनएस सिस्टम और इसमें प्रेजेंट रहते हैं। डिसऑर्डर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, डिसऑर्डर्स में दो ही चीज प्रेजेंट है। सबसे पहले
हार्ट के डिसऑर्डर में उन्होंने बोले हुआ है दैट इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर विच इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोले तो इंक्रीज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, इसको भी अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। इंक्रीज ऑफ बीट, नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर रहता है 120/80, पर जब ये पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं तो अपने को हाइपरटेंशन की डिजीज आती है। हाइपरटेंशन होने के बाद आगे उन्होंने और एक बोला है, वो बोले तो क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विच इज कॉल्ड एज सीएडी। सीएडी बोले तो सिंपल में जब अपने कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है बोले तो क्या हो जाती है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ने के बाद उसमें से ब्लड ज्यादा आता है, ब्लड ज्यादा होने के बाद एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता और उस वजह से अपने को हार्ट अटैक और ये सब चीजें हो जाती है। ये हार्ट अटैक होने के बाद तो हार्ट अटैक होने के बाद आगे और एक चीज होती है अपने इसमें, वो बोले तो क्या, हार्ट फेलियर भी होता है। हार्ट फेलियर के पहले अंजना बोला था उन्होंने। अंजना में क्या बोले हुआ उन्होंने, सिंपल इसमें अंजना में इट रिजल्ट इन द चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज, जब अपने हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता नहीं तब पूरे हार्ट के मसल्स पेन करने लगते हैं, उस चीज को अंजना बोले हुआ है। अंजने के बाद आखिरी पार्ट है आपका हार्ट फेलियर का, जब ब्लड अच्छी तरह से पंप होता नहीं है तब अपने इसमें हार्ट फेलियर हो जाता है और इस वजह से हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता है और हार्ट फेलियर की वजह से अपने को अटैक्स आ सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने पूरे स्लाइड्स में मैंने अब तक क्या क्या सिखाया, पूरा मैंने आज के स्लाइड्स में आपको टोटल असाइनमेंट से लेके तो लिंक सिखाया। लिंक के बाद में आपको असाइनमेंट के आंसर्स दिए, उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे सिखाया, सर्कुलेटरी पाथवे के बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सिखाया, उसके बाद कार्डियक साइकिल सिखाया, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट भी सिखाया, कार्डियक आउटपुट के बाद ईसीजी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सिखाया, डबल सर्कुलेशन सिखाया, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी सिखाया, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सिखाया। उसके बाद असाइनमेंट प्रेजेंट है। असाइनमेंट के बाद सिंपल में मैं सबसे पहले असाइनमेंट आपसे शेयर या फिर डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले असाइनमेंट का आंसर आपका डैश इज द रिजल्ट ऑफ द चेस्ट पेन, ऐसी बोले हुए उन्होंने, ठीक है। डैश रिजल्ट इन द चेस्ट पेन व्हेन इट इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द हार्ट। वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। डैश is a dash in the chest pain where it is not enough of oxygen available, बोले तो dash result in the chest pain when not enough oxygen is available, ठीक है। तो उसका आंसर है अपने इसमें अंजना, चेस्ट पेन अंजना पिक्टोरियस या फिर अंजना में दिखती। dash is an instrument used to record the electrocardiogram which is called as electrocardiograph. dash detect and record the electropotential of the heart during cardiac cycle, electrocardiogram आंसर है उसका। in dash the coronary artery become narrow, उसका आंसर है coronary artery disease। इस हिसाब से पूरे असाइनमेंट के भी आंसर आपको मैंने दिए। मेरा समझा लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को मेरे लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल।